A very warm welcome to all of you. We are doing the book reading session on the game of life and how to play it, and this is day 5. लास्ट डे हमने यहाँ स्टॉप किया था कि हमारे माइंड में ना हम लकी सिचुएशन को खुद क्रिएट करते हैं. ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ों पर बिलीव होने लग जाते हैं. सपोज़ किसी ने हमें कोई ताबीज़ दे दी या घोड़े की नाल या इस तरीके की चीज़ें. कोई बोलता है कि राक्षस की पिक्चर को अपने घर के बाहर या ऑफिस के बाहर चिपकाने से हम गुड लक अट्रैक्ट करते हैं. ये सब हमारी बिलीफ सिस्टम है. एक्चुअल में ये चीज़ें हमारी लाइफ में गुड लक नहीं लाती. हमारा ये बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ में गुड लक लाता है कि अब मेरे लाइफ में गुड लक आने वाला है क्योंकि मैंने वो पिक्चर वहाँ टंगा दी. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. I find, however, this will not work when man has advanced spiritually and knows a higher law. One cannot turn back and must put away graven images. For example, 2 men in my class had great success in business for several months when suddenly everything went to smash. We tried to analyze and we found that instead of making their affirmations and looking to God for success and prosperity, they had each bought a lucky monkey. ये वही एग्जाम्पल है कि दो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें सक्सेस अपनी मेहनत और अपनी गॉड के जो स्पिरिचुअल लॉज है उस वजह से नहीं, बल्कि ये जो लकी मंकी उन्होंने कहीं से ख़रीदा होगा उसकी वजह से मिल रही थी. और सडनली उनका बिज़नेस पूरा ख़त्म हो गया क्योंकि उन्हें ये लकी मंकी पर ज़्यादा भरोसा हो गया था. वो अपने खुद के बिलीफ सिस्टम पर, अपने लक पर बिलीव नहीं कर रहे थे. Put away the lucky monkeys and call on the law of forgiveness, for man has power to forgive or neutralize his mistakes. मतलब कि उसके तकदीर में तो वो था ही, वो बिज़नेस की प्रॉस्पेरिटी, वो लक उसके तकदीर में था, उसके बर्थ प्लानिंग में था, लेकिन उन्होंने गलती से किसी और चीज़ पर विश्वास कर लिया था और उन्हें लग रहा था कि मैं इस वजह से मेरी ग्रोथ हो रही है. लेकिन स्पिरिचुअल लॉ में फॉरगिवनेस के लिए भी एक जगह है, तो आप अपनी मिस्टेक्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं जैसे ही आपने भगवान से या यूनिवर्स से फॉरगिवनेस मांगी. They decided to throw the lucky monkeys down a coal hole and all went well again. This does not mean that you should throw away every lucky ornament or horseshoe, but he must recognize that the power back of it is the one and only power, God, and that the object simply gives him a feeling of expectancy. तो ये लोग ये कह रही हैं ऑथर कि ऐसा नहीं है कि जब आपको ये लॉ के बारे में मालूम पड़ गया है तो अभी तक आप जितनी भी चीज़ों को अपनी लाइफ में लकी मान रहे थे आप उसको हटा दें. ऐसा नहीं, आप उसको मत हटाइए, आप उसको वहीं रखिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपकी लाइफ में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रही है, एक एक्सपेक्टेंसी क्रिएट कर रही है. लेकिन ये एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं हो रहा, आपकी लक में, आपकी बर्थ प्लान में ये चीज़ लिखा है इसलिए आपके साथ हो रहा है. I was with a friend one day who was in deep despair in crossing the street. She picked up a horseshoe. Immediately she was filled with joy and hope. She said God had sent her the horseshoe in order to keep up her courage. It was indeed at that moment about the only thing that could have registered in her consciousness. Her hope became faith and she ultimately made a wonderful demonstration. I wish to make the point clear that the men previously mentioned were depending on the monkeys alone, while this woman recognized the power back of the horseshoe. I know in my own case it took a long while to get out of a belief that a certain thing brought disappointment. If the thing happened, disappointment followed. I found the only way I could make a change in the subconsciousness was by asserting there are not two powers, there is only one power, God. Therefore, there are no disappointments and this thing means a happy surprise. I noticed a change at once and happy surprises commenced along my way. So basically यहाँ पर ये ऑथर कहना चाह रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गॉड के ऊपर फेथ होना चाहिए. हमें अपने आप के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपनी यूनिवर्स के ऊपर, हम जिसकी भी प्रे करते हैं,
हमें उस पर भरोसा करना है कि हाँ डेफिनेटली सक्सेस इज़ माइन, विक्ट्री इज़ माइन, ये खुशी मेरी है, ये रिलेशनशिप में ये मेरा रिलेशनशिप है। हम सब जब हम ये पावर गॉड को सरेंडर कर देंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो भी हमारे लाइफ में हैं वो सब एक्स्ट्रा हो जाएंगी। आई हैव अ फ्रेंड हु सेड नथिंग कुड इंड्यूस हर टू वॉक अंडर अ लैडर। ये भी बहुत लोग बिलीव करते थे ना कि सीढ़ी के नीचे से मत जाओ, बैड लक लेके आता है। सो आई सेड इफ़ यू आर अफ्रेड यू आर गिविंग इन टू बिलीव in two powers, good and evil, instead of one. As God is absolute, there can be no opposite power unless man makes the false of evil for himself. मतलब वो बिलीव करती थी कि अगर मैं सीढ़ी के नीचे से चली जाऊंगी तो मेरे लाइफ में कुछ दुर्घटना आ जाएगी। और ये ऑथर एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही है कि दुनिया में दो शक्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है। दूसरी शक्ति को तो हम अपनी थॉट प्रोसेस से एनर्जाइज कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं। असली दुनिया इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ गॉड है और सिर्फ पॉजिटिविटी है, लेकिन हम अपने थॉट प्रोसेस से ऑपोजिट सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। गॉड इज एब्सोल्यूट, देयर कैन नॉट बी एनी ऑपोजिट पावर। To show you believe in only one power, God, and that there is no power or reality in evil, walk under the next ladder you see. So ये ऑथर ने उनको बोला कि ठीक है, तुम अपने बिलीफ सिस्टम को हटाओ, मैं तुमको प्रूफ करूँगी कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही है। अब नेक्स्ट टाइम जो लैडर आएगा तुम उसके नीचे से वॉक करना और तुम ज़रूर देखना कि तुम्हारे साथ क्या बुरा होता है। Soon after she went to her bank. She wished to open her box in the safe deposit vault. And there stood a ladder on her pathway. It was impossible to reach the box without passing the ladder. She quailed with fear and turned back. She could not face the lion on the pathway. However, when she reached the street, my words rang in her ears and she decided to return and walk under it. It was a big moment in her life, for ladders had held her in bondage for years. She retraced her steps to the vault and the ladder was no longer there. This so often happens. ये वाली एग्जाम्पल को आप समझने की ट्राई करिए। उसको लैडर का इतना फियर था कि वो अपनी लाइफ में लैडर्स को अट्रैक्ट भी कर लेती थी सिर्फ अपने फियर की वजह से। उसको लगता था कि अगर कोई लैडर मेरे रास्ते में आ गया और अगर मैं उसके नीचे से गई तो मेरी लाइफ में ईविल होगा। बट ये ऑथर ने उनको बोला था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ लैडर तुमको बिलीव करना पड़ेगा सिर्फ भगवान की शक्ति पर, इसलिए तुम उस लैडर के नीचे से क्रॉस करोगी और मेरे बोलने पे तुम ये ट्राई करना और तुम देखना तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो वो बात सुन के वो चली गई। उसको अपने बैंक में जाना पड़ा। बैंक में उसको अपने सेफ डिपॉजिट वॉल्ट को खोलना था और वो वॉल्ट के पहले एक लैडर पड़ी थी। अब देयर वाज नो वे कि वो वहाँ तक जा सके विदाउट क्रॉसिंग द लैडर। तो वो सोची कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी लैडर नहीं क्रॉस करूँगी। देखिए, मैंने लायन वाली एग्जाम्पल जो शेयर की थी, शी कुड नॉट फेस द लायन ऑन हर पाथवे। वो शेर से इतना डर रही थी कि वो डर के मारे भाग गई कि नहीं, वो ऑथर जो भी बोल रही है बोलने दो, मुझे पता है कि ये लैडर मेरे लिए बिल्कुल बुरी न्यूज़ लेके आने वाला है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करने वाली हूँ। उन्होंने ऐसा सोच लिया और वो वापस घर चली गई। लेकिन घर जाते जाते उनको याद आया कि एक काम करती हूँ, एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और वो वापस से बैंक जब गई, अपना हिम्मत बना के कि अब कोई बात नहीं, मैं लैडर के नीचे से जाऊँगी और मैं देखती हूँ मेरे साथ क्या बुरा होता है। जब उसने ये वाला डिसीजन लिया और वो वापस घूम के गई, द लैडर वॉज नो लॉन्गर देयर। वो सीढ़ी वहाँ थी ही नहीं, वो शेर गायब हो चुका था। क्या ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे ही आप शेर के सामने आके खड़े हो जाओगे ना, वो आपके सामने से गायब हो जाएगा। दिस सो ऑफन हैपन्स। इफ़ वन इज़ विलिंग टू डू अ थिंग ही इज़ अफ्रेड टू डू, ही डज़ नॉट हैव टू। इस लाइन की इम्पोर्टेंस को समझिए। हमें बहुत बार जिस चीज़ से हमें बहुत डर लगता है कि हमें वो नहीं करना है, लेकिन जिस दिन हमने साहस कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, आज वो कर ही लेते हैं, आपने डिसीजन ले लिया है ना उस लायन को आँख में आँख डाल के देखने का, उस दिन वो लायन गायब हो जाएगा। आपको वो काम करना ही नहीं पड़ेगा।
इट इज़ द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस. नॉन रेजिस्टेंस मतलब हम उस चीज़ को रेजिस्ट करना बंद कर दिए, इसीलिए ये लॉ है. ये सब स्पिरिचुअल लॉज है, इसीलिए बोला गया है ना कि लाइफ आपकी गेम बन जाएगी जब आप इसके सारे लॉज को समझ जाएंगे, नहीं तो लाइफ आपके लिए बैटल रहेगी. ये इस बुक की फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था. विच इज़ सो लिटिल अंडरस्टैंड, विच इज़ सो लिटिल अंडरस्टैंड. Someone had said that courage contains genius and magic. Face a situation fearlessly, and there is no situation to face. It falls away of its own weight. Please read this again. Mark it in your books. The explanation is that fear attracted the ladder on the woman's pathway, and fearlessness removed it. डर से उसने लैडर को अट्रैक्ट किया था. जिस दिन उसने डर को फेस करने की हिम्मत बनाई, वो लैडर गायब हो चुकी थी. द इनविजिबल फोर्सेस आर एवर वर्किंग फॉर मैन हु इज़ ऑलवेज पुलिंग द स्ट्रिंग्स हिमसेल्फ, दो ही डज नॉट नो इट. मतलब हमारी लाइफ की हर एक सिचुएशन को हम ही क्रिएट करते हैं, हमें चाहे वो पता हो नहीं पता हो, हमें वो जानना अब ज़रूरी है क्योंकि ये सब लॉज के हिसाब से चल रहा है. Owing to the vibratory power of words, whatever man voices, he begins to attract. Voices मतलब जो भी हम मुंह से बोल रहे हैं, क्यों हम उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि हमारे शब्दों में एक वाइब्रेटरी पावर है. वाइब्रेटरी पावर मतलब एक वाइब्रेशन होती है हमारे वर्ड्स में, जो उसी वर्ड्स को अट्रैक्ट कर लेती है, उसी चीज़ों को फिजिकलाइज कर लेती है. पीपल हु कंटिन्यूअली स्पीक ऑफ डिजीज़ इनवेरिएबली अट्रैक्ट इट. आई होप ये वाली एग्जाम्पल हमने रियल लाइफ में देखी है. बहुत लोग जो कॉन्स्टेंटली बीमारी की बात कर रहे होते हैं, या गरीबी की बात कर रहे होते हैं, या बैड लक की बात कर रहे होते हैं, या फिर जिसके सबसे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे होते हैं, उनके लाइफ में नए रिलेशनशिप्स भी वैसे ही आते हैं जो लोग बहुत अजीब से होते हैं और ख़राब होते हैं. उनकी लाइफ में बीमारियों की बहार आ जाती है. हम सब जानते हैं इस तरीके के लोगों को, और ये लोग ये खुद नहीं जानते कि अब इस अनचाही चीज़ के बारे में इतनी बात कर कर के ये अपनी लाइफ में इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी खुद के शब्दों की पावर से. आफ्टर मैन नोज द ट्रूथ, he cannot be too careful of his words. For example, I have a friend who often says on the phone, "Do come to see me and have a fine old-fashioned chat." This old-fashioned chat means an hour of about 500 to 1,000 destructive words, the principal topics being loss, lack, failure, and sickness. I reply, "No, I thank you. I've had enough old-fashioned chats in my life. They are too expensive. But I will be glad to have a new-fashioned chat and talk about what we want and not what we don't want." ये हमें ऑथर बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रही है कि हमें प्लीज़ गॉसिप, या गॉसिप भी हार्मफुल गॉसिप, किसी के बारे में अननेसेसरीली रॉन्ग बातें बोलना, बुरा बोलना, वी डोंट हैव टू इंडल्ज, बिकॉज हम जो बातें कर रहे हैं अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये सारी जो गॉसिप सेशंस होते हैं ना, दे आर टू एक्सपेंसिव. प्लीज़ राइट इट समवेयर ऑन योर फोन और समवेयर दैट गॉसिप इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमें महंगा पड़ता है. हमें सिर्फ उसके बारे में बातें करनी है जो हमें चाहिए. देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट मैन ओनली डेयर्स यूज हिज वर्ड्स फॉर 3 पर्पसेस: टू हील, ब्लेस और प्रॉस्पर. हमें अपने शब्दों को, अपनी सोच को किसी को हील करने के लिए यूज़ करना है, ब्लेस करने के लिए, या फिर खुद की तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए. What man says of others will be said of him, and what he wishes for another, he is wishing for himself. ये हमने बचपन में बहुत बार सीखा है. इतनी सारी मॉरल स्टोरीज़ में हमने स्कूल में भी पढ़ा है ना, कि जो हम किसी और के बारे में विश करते हैं सबसे पहले वो हमारे साथ होता है. Curses like chickens come home to roost.
मतलब अगर हमने किसी के लिए भी भूल से भी बुरा बोल दिया, ये हो सकता है आज आपके सामने पलट के नहीं आए, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ही, क्योंकि ये लॉ है, ये स्पिरिचुअल लॉ है। तो प्लीज़ किसी के बारे में कुछ भी कर्स करने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोचिए कि ये घूम के मेरी लाइफ में तो आना है। आज हो सकता है कि मेरी पोजीशन ख़राब है, उसकी पोजीशन अच्छी है, और आपने अगर कर्स कर दिया तो कल वो रिवर्स होने वाली है। If a man wishes someone bad luck, he is sure to attract bad luck himself. If he wishes to aid someone to success, he is wishing and aiding himself to success. The body may be renewed and transformed through the spoken word and clear vision, and disease be completely wiped out of the consciousness. I am repeating this line. हमारी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में बड़ी से बड़ी बीमारी completely renewed और transformed हो सकती है by spoken word and clear vision. The metaphysician knows that all disease has a mental correspondence, and in order to heal the body, one must first heal the soul. आप समझ सकते हैं ये बुक कब की है। ये ऑथर 1840 में बॉर्न हुई थी। हम ये सारी चीज़ों को तो मैजिक बुक में हमने सीखा है ना, कि हमारी फिज़िकल बॉडी से पहले हमें अपने मेंटल बॉडी, अपनी इमोशनल बॉडी की ख्याल रखनी है। हर एक बीमारी, every disease has a mental correspondence. If you all want, I will share a chart in the WhatsApp group where हर एक बीमारी के पीछे क्या इमोशन छुपे हैं उसकी पूरी लिस्ट है। तो जिस दिन हम ये बात को समझ के एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरी थॉट से मेरी फिज़िकल बॉडी में भी बीमारियाँ आ रही है, तो क्या हम किसी के लिए भी या खुद के लिए भी क्या हम कभी भी नेगेटिव सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें वैसी बॉडी नहीं चाहिए। द सोल इज़ द सबकॉन्शियस माइंड एंड इट मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In the 23rd Psalm, we read, He restores my soul. This means that the subconscious mind or soul must be restored with the right ideas, and the mystical marriage is the marriage of the soul and the spirit, or the subconscious and the superconscious mind. इस लाइन का मतलब हर वक्त अपना मन चाहा ही सोचो। अगर आपको कहीं कोई बॉडी में इश्यूज़ हो भी रहे हैं ना, तो ये मत सोचो कि ये क्या हो सकता है, क्या ये डिज़ीज़ हो सकती है, वो डिज़ीज़ हो सकती है। गूगल सर्च करने मत बैठो। इससे अच्छा क्या चाहिए, कल मुझे कैसी बॉडी चाहिए, सुपर फिट, मैं मैराथन रन कर रही हूँ, ऐसी बॉडी चाहिए ना, तो बस उसी के बारे में सोचो। दे मस्ट बी वन। When the subconscious is flooded with the perfect idea of the superconscious, God and man are one. I and the Father are one. That is, He is one with the realm of perfect ideas. He is the man made in God's likeness and image, and is given power and dominion over all created things, his body, mind and affairs. इस लाइन का मतलब हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे आसपास की सारी सिचुएशन क्रिएटेड बाय गॉड है। और सबसे पहले हम क्या है, वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। तो हम जैसा सोचेंगे, हम अपनी सोच से, राइट सोच से हम अपनी एक्सटर्नल सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, माइंड को, बॉडी को, अफेयर्स को। इट इज़ सेफ टू से दैट ऑल सिकनेस एंड अनहैप्पीनेस कम फ्रॉम द वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ लव। A new commandment I give unto you, love one another. And in the game of life, love or goodwill takes every trick. We'll stop here, but I'll just give a quick explanation कि law of love बोल के भी एक spiritual law है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें सबको सिर्फ प्यार ही देना है, ये सबसे बड़ी ट्रिक है अपनी लाइफ में अपनी मन चाही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो वील कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।